Hi student, I am once again S.K. Bajpayee. I am here with some important things for you, some important material for you. I hope you will get benefited, no doubt. But how? How can you have benefit from this session? You can get benefit only if you listen to me with concentration. If you are reckless, careless during listening, I do not think you will get any extra benefit. Your efforts will go in vain. So listen to this video, listen to me very carefully. Today I have come with a package for you regarding writing section. Writing section is an important section for your English curriculum. Okay? This is a part of creative writing. Before going on to start, I would like to throw some lights on creative writing. देखो क्वेश्चन पेपर में जो होता है ना रीडिंग सेक्शन, वो किस लिए है? रीडिंग सेक्शन टेस्ट्स ए स्टूडेंट as to how he or she can comprehend any composition, any work of art. How can it be apprehended? How can you understand it? Up to what level your understanding is? This is the thing which is tested in reading section. In writing section, the questioner expects from you how can you explain, how can you interpret, how can you write a certain thing that is given to you. Suppose how can you write a letter? How can you write an advertisement? This is a very creative writing. Patralekhan, writing a letter, letter writing has been in practice, has been in full swing since ancient times. There has been a correspondence between two states, two kings, two kingdoms. और मैसेंजर पत्र के माध्यम से वो सारा काम कर देता था. तो ये बड़ा क्रिएटिव राइटिंग है. A letter or a message can gain heart and confidence even of an opponent. शत्रु का भी दिल जीत सकता है. इतनी अच्छी लिखावट होती है, लिखने का ढंग ऐसा होता है. ये सब विधा जो है, ये सब सेक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है लेटर राइटिंग में. सपोज यू आर ए ग्रेट मैथमेटिशियन, you know physics, chemistry, biology, accounts, BST to a maximum extent. But you cannot express what you deserve. जितना तुम जानते हो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो. You cannot aptly describe your material. क्या मीनिंग इसका? आप जितना जानते हैं उसको आप ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इंटरप्रेट नहीं कर सकते, तो वो बेकार हो जाएगा. तो ये क्रिएटिव राइटिंग है, आपको जानना चाहिए लेटर कैसे लिखा जाता है,
how to write a speech, how to deliver a speech. These days, you can see there are so many politicians in our country, but one politician is undoubtedly accept, is accepted everywhere. Why? He knows the mood and mentality of the public. He knows what the spectators, a gathering, want to hear. And he delivers the lecture, he delivers his lecture, just keeping in mind the mood and mentality of the audience, the spectators, audience and gathering. He is acclaimed everywhere. And there are also some of the politicians who do not know how to grab the opportunity with his speech, with their speech. No doubt. They are criticized. I do not like to mention even some of their name. You know very well. This is an art. This is a creative art. Now, here I am with advertisements. The present age is no doubt a commercial age. This is an age of e-commerce, commerce. Things are sold, and purchased throughout the world. How? For this, not a messenger goes to another place to seek a market. No. It is, all is done through advertisement. So what is an advertisement? You can see on your screen, it is visible. An advertisement is a public announcement which is displayed through a popular newspaper, radio, TV, magazines and सिनेमा. बड़ा इफेक्टिव सशक्त माध्यम है, बड़ा लोकप्रिय माध्यम है. सिनेमा के माध्यम से, रेडियो, न्यूज़पेपर, आजकल तो मोस्टली टेलीविज़न से, इसके माध्यम से एडवर्टीजमेंट होता है, प्रचार प्रसार होता है. इट इज़ ए मैसेज. और एक्चुअली उसमें होता क्या है? एक मैसेज है रिगार्डिंग ए प्रोडक्ट. कोई चीज़ सामान है हमारा जिसको हम मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो उस प्रोडक्ट का या कोई आइडिया है, सर्विस है, कोई भी चीज़ है, उसको इन्हीं सब के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ मीडिया, यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट, both media, newspaper, radio, television, magazines and cinema, these advertisements are displayed. ये क्या करता है? बहुत लार्ज स्केल पर सिनेमा हॉल में देखोगे, वहाँ भी एडवर्टीजमेंट आता है. इट अट्रैक्ट्स द इमीडिएट अटेंशन ऑफ द पब्लिक. तुरंत ध्यान खींचता है लोगों का. इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल for promoting sales or service. बड़ा सशक्त माध्यम है, ये टूल है. It creates the maximum effect by employing a minimum number of words. और ये तो मॉडर्न राइटिंग का मेन उद्देश्य है. आजकल के आधुनिक लेखन का ये मेन ऑब्जेक्ट है कि आप अधिक प्रभाव पैदा कीजिए कम शब्द बोलकर. इट क्रिएट्स द मैक्सिमम इफेक्ट बाय एम्प्लॉइंग ए मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स. और एडवर्टीजमेंट इज परहैप्स द बेस्ट एग्जाम्पल. और एक चीज़ याद रखिए, रिमेंबर, इट इज शॉर्ट, कॉम्पैक्ट एंड अट्रैक्टिव. विस्तार नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है, एकदम कॉम्पैक्ट. इंफॉर्मेशन उसमें गूंथा हुआ रहता है.
एंड अट्रैक्टिव, बड़ा आकर्षक होता है। एंड अल्टीमेटली, और अंततः ये क्या है? इट इज़ ए प्ले ऑफ वर्ड्स। ये तो शब्दों का खेल है, शब्दों का जादू है ना। आइए हम जानते हैं, एडवर्टीजमेंट बेसिकली दो तरह का होता है जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है। क्लासिफाइड एंड कमर्शियल। क्लासिफाइड में बहुत तरह के आते हैं। मैट्रिमोनियल है, एक तो हॉरोस्कोप होता है, सिचुएशन बैकेंट होता है। कमर्शियल मैनली खरीद बिक्री वाली चीज़ होती है, हमको ये बेचना है, हमको ये खरीदना है। तो आइए, here is an example of situation vacant under commercial advertisement। commercial advertisement सिचुएशन वैकेंट का हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। नीचे हमने कहा है, अब सिचुएशन वैकेंट, ये थोड़ा सिचुएशन माइंड को इरिटेट करता है। सिचुएशन वैकेंट क्या हो जाएगा? नहीं, सिचुएशन मीन्स पोस्ट, पद, तो पद खाली है, सिचुएशन वैकेंट क्लियर हो जाएगा। एडवर्ट, अब इसके लिए कुछ टिप्स हैं कि हम क्या दिमाग में, माइंड में रखें व्हेन वी अटेम्प्ट एन एडवर्टीजमेंट, वेदर इट इज़ कमर्शियल और क्लासिफाइड। तो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट लिखने के पहले हमको थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ है वो दिमाग में रखना होगा। बिगिन विथ वांटेड और रिक्वायर्ड, है ना। बिगिन विथ वांटेड और रिक्वायर्ड, ये तो परहैप्स इट इज ए क्लासिफाइड कॉलम, कमर्शियल। ठीक, बिगिन विथ वांटेड और रिक्वायर्ड। वांटेड चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए, वही हो गया। तो इससे आप आरंभ करें। मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी, किसको चाहिए? कंपनी को चाहिए, कंपनी का नाम दीजिए, संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन, कंपनी, जिसको भी है उसका नाम मेंशन। मेंशन द पोस्ट एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज, किस पद पर बहाली चाहिए उस पद का नाम दें, कितने लोगों की चाहिए उसका नंबर देना होगा, संख्या देनी होगी कि इतनी वैकेंसीज है। देख, तो आजकल कहीं वैकेंसी निकलती, लोग करते हैं कि नहीं इतना पोस्ट है, वैकेंसी बड़ा लार्ज वैकेंसी है। फिर उसके बाद गिव एज, सेक्स एटसेट्रा, ये सब तो देना ही है, उम्र क्या है, आप मेल हैं फीमेल हैं। मेंशन पे स्केल एंड पर्क्स, अब आप लेंगे बहाली, पे स्केल क्या होगा, कितना उसको तनख्वाह देंगे, और पे स्केल के अलावे जो अन्य सुविधाएं मिलती हैं, अदर एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़, एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को छोड़कर जो अन्य सुविधाएं होती हैं उसको पर्क्स बोलते हैं। ठीक है, वो आप क्या देंगे। और अंत में हम समाप्त करेंगे, एंड विथ कॉन्टैक्ट एड्रेस, जो अप्लाई करेगा वो किसको करेगा, तो एड्रेस दीजिए, या आजकल फ़ोन नंबर का ज़माना है, फ़ोन का, फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर भी हर लोग देते हैं। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पूनम इंटरप्राइजेस, आप पूनम इंटरप्राइजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये क्या है पूनम इंटरप्राइजेस? ए लीडिंग गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स हाउस, गारमेंट्स का इनका बड़ा कारोबार है, बाहर माल बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हाउस है। अब यू नीड एन अकाउंटेंट फॉर योर धनबाद ऑफिस, आपको धनबाद ऑफिस के लिए एक अकाउंटेंट की ज़रूरत। राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द सिचुएशन वैकेंट कॉलम ऑफ ए लोकल डेली। ये सिचुएशन वैकेंट कॉलम ऑफ ए लोकल डेली क्या है? ऐसे समझ जाओ, अखबार होता है लोकल डेली, स्थानीय स्तर पर जो डेली अखबार निकलते हैं उसी को लोकल डेली कहा जाता है, डेली।
उसमें कई कॉलम होते हैं। तो ये जो है सो किस में, सिचुएशन वैकेंट कॉलम में जाके छपेगा। ठीक है, अब आप लिखिए, देखो आंसर यहाँ दिया हुआ है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वांटेड या रिक्वायर्ड से आरंभ कीजिए, दिया हुआ है वांटेड, क्या चाहिए, तो ए कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अकाउंट्स इंडिपेंडेंटली। एक ऐसा सक्षम और अनुभवी अकाउंटेंट चाहिए जो अकाउंट्स के मैटर को स्वतंत्र रूप से अपने वो हैंडलिंग कर सके। कॉमर्स ग्रेजुएट हैविंग एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस इन a reputed firm will be preferred। सीधा है, ग्रेजुएट हो कॉमर्स में, 5 साल का एक्सपीरियंस अगर किसी रिप्यूटेड कंपनी में फर्म में काम किया है तो उनको विशेष सुविधा दी जाएगी, प्रेफर किया जाएगा। सैलरी एंड पर्क्स अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। लोग डिस्क्लोज नहीं भी करते हैं, आपस में बैठ के नेगोशिएशन होता है इंटरव्यू के बाद, तो जो होगा सैलरी पर्क्स ये सब जो होगा आपकी कार्य क्षमता, इफ़िशियंसी और कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के आधार पर तय हो जाएगा। अब अप्लाई कहाँ करें, तो देखिए दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट एड्रेस अप्लाई टू असिस्टेंट मैनेजर HRD पूनम इंटरप्राइजेज धनबाद, अप टू 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक इसको भेज दीजिए आप। दो वर्ड्स हम सोच रहे थे कि आपको दिक्कत दे सकता है। सिचुएशन मने पोस्ट है, पर्क्स मने अदर फैसिलिटीज एक्सक्लूडिंग सैलरी। हमको लगता है कि ये आप सिचुएशन वैकेंट कॉलम में जाने वाली चीज़ें, कोई बहाली से रिलेटेड जो है, यानी सिचुएशन वैकेंट, इस सिचुएशन को आप हैंडल कर लेंगे और लिख पाएंगे। हमने होमवर्क दिया है, जैसे यू आर विवेक मल्होत्रा, you want an English tutor for your daughter, write an advertisement to be published in the classified column of a local newspaper। 50 words में तो लिखना ही होता है। आपको एक इंग्लिश ट्यूटर चाहिए आपकी लड़की के लिए, और आपको एक ट्यूटर चाहिए, आपको उसमें लिख देना है। ठीक है, अगली बार नेक्स्ट टाइम I will appear with quite a new thing for you. Till then, enjoy yourself, stay home, stay safe.